یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے آپ سب کو میری طرف سے، ہماری قوائم کی جانب سے، پیرش کمیٹی کی جانب سے عید پینتیکوس مبارک ہو، اور ہم سب خدا کے جلال کے لیے زوردار کلیپنگ کریں گے۔ میرے صبح ہم غور کریں گے عید پینتیکوس پر۔ میرے سارا سال جو یہودی ہیں وہ بے شمار عیدوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، لیکن میرے تین وہ خاص عیدوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، جن میں پہلی ہے عید فصح۔ اور وہ عید فصح اس لیے مناتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل قوم کو اپنے زور بازو سے، اپنی طاقت اور قوت سے ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا۔ اور دوسری عید ہے عید قیام، یعنی قیاموں کی، جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی سے نکلے تو وہ 40 سال بیابان میں خیمے لگا کر رہے، اور اس کی یاد میں مناتے ہیں۔ اور جو تیسری عید ہے پہلے پھلوں کی یا فصل کاٹنے کی عید، اور یا پھر میرے اسے عید پینتیکوس کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ پہلی تلاوت جو کی گئی استثنا اس کا 16واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے تو ہنسوا لے کر فصل کاٹنی شروع کرے، تب سے 7 ہفتے گن لینا، تب جیسی برکت خدا تیرے خدا نے تجھے دی، اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رسا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خدا اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید بنانا۔ ویسے یہاں پر غور کریں تو بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ 7 ہفتے گننے کے بعد فصل کاٹنے کی عید کو کیا کرتے ہیں؟ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، اور خدا کے حضوری میں شکر گزاری کے طور پر جو پہلی فصل کے بعد ہے وہ خدا کے حضور نذر کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں 7 کو 7 کے ساتھ اگر ہم ضرب دے تو 49 سے 7 ہفتوں تک، یعنی 50ویں دن وہ کیا کرتے؟ عیدیں سیلیبریٹ کرتے۔ اور آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ جو پینتیکوس کا مطلب ہے وہ 50واں دن ہے، کہ جب یسوع نے قبر، موت اور گناہ پر فتح پائی، جسے ہم عید قیامت المسیح کا نام دیتے ہیں، اس کے ٹھیک 40 دن بعد یسوع مسلسل نظر آتا رہا، خدا کے کلام کی بشارت دیتا رہا، اور 40ویں دن یسوع زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، صعود فرما گیا۔ اور جب یسوع صعود فرما گیا اس کے ٹھیک 10 دن بعد ذکر ملتا ہے عید پینتیکوس کا، یعنی کہ روح قدس کے نزول کی عید کا ذکر ملتا ہے۔ اور کلام الہی فرماتا ہے کہ جب تمام لوگ عید فصح کو منانے کے لیے، قیاموں کی عید منانے کے لیے، ہفتوں کے پہلے پھلوں کی عید کو منانے کے لیے جب تمام لوگ یروشلم میں گئے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہر ایک یہودی پر لازم تھا کہ وہ خاص عیدیں کہاں پر جا کر یروشلم میں منائے۔ خدا کے آئین کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق
तो फिर इस बात को आप सब ने याद रखना है कि ये जो ईदें हैं ये 50 दिन बाद मनाई गई। अगर इबादत की किताब उसका 23वां बाब इसकी 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर हमें जिक्र मिलता है, क्योंकि ये ईद फसह के बाद 7 हफ्ते दिन का 50वें दिन मनाई जाती थी। और फिर जो पहले फलों की ईद, इस दिन बनी इस्राएल नई फसल यानी गेहूं और गंदम के पहले फल शुक्राने के तौर पर खुदा की हजूरी में लाते और खुदा की नजर करते। गिनती की किताब 28 का 26 आयत में इसका जिक्र मिलता है। और फिर जो यहूदियों में खास रवायत थी कि जब वो ईद फसह को सेलिब्रेट करते तो इस बात को हमेशा याद रखते कि खुदा अपने बंदा मूसा की मार्फत बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद करके लाया। उसके ठीक 50 दिन बाद जब वो सीना के पास पहुंचे तो कलाम इलाही फरमाता है कि जो खुदा का बंदा मूसा है वो खुदा के हजूरी में गया और बनी इस्राएल कौम के लिए 10 अहकाम की शरीयत मांगी। और जो ये शरीयत भी इस बात की याद में वो ईद फसह सेलिब्रेट करते थे, खुदा ताकत और कुव्वत से हमें लाया है। और फिर जो खुदा ने शरीयत दी ताकि उसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजार सके। और जो आप सब ने याद रखना है कि ये ईद फसह है, ये खुदा और इंसान के दरमियान एक अहद की याद भी नजर आती है कि खुदा ने 10 अहकाम की क्या दी, उनको शरीयत दी। और फिर जो कुरूस की किताब पर गौर करें तो वहां पर बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। 34 बाब की 22वीं आयत में वहां पर खुदा मूसा की मार्फत फरमाता है तुम हफ्तों की ईद यानी गेहूं की फसल के पहले फलों की ईद मनाना। मेरी जरा गौर करें, क्या ईद पेंतीकोस्त है, आज सब्त का दिन है। तो कलाम फरमाता है कि तू याद करके सब्त का दिन पाक मानना, इसमें कोई काम काज ना करना, ना बेटा ना बेटी ना गुलाम ना लौंडी ना नौकर ना कोई चाकर ना कोई मुसाफिर, बल्कि उस दिन खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। लेकिन इसीलिए जो यहूदी थे वो ईद फसह के लिए, ईद क़याम के लिए और पहले फसल काटने की ईद को मनाने के लिए यरूशलेम में जाते ताकि उस मुकद्दस ईदों में शामिल हो सके जिनका खुदा ने हुक्म दिया था कि मेरी यादगिरी में इसे करना, इसे मनाना। और जो खुदा का कलाम फरमाता है जब ये सारे शुक्राने की ईद मनाने के लिए, फसल काटने की ईद मनाने के लिए जब वो वहां पर गए तो मेरे जो याद रखना आप सब ने अहद जदीद में कलाम फरमाता जब यीशु अपने शागिर्दों को बरकत दे रहा था तब वो 40 दिन और 40 रात जिंदा रहा और कलाम की मुनादी करता रहा। तो यीशु ने शागिर्दों से हुक्म दिया कि जब तक तुम्हें आप में 12 से कुव्वत का लिबास ना मिले तुम इसी शहर में ठहरे रहना। और कलाम फरमाते हैं पेंतीकोस्त के रोज जब तमाम लोग एक जगह पर जमा थे और पहले फलों की ईद को, फसल काटने की ईद को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो नया नामा बयान करता है उस रोज सोर की आंधी का सन्नाटा आया
से सारा घर गूंज गया और लिखो में आग की शोला की सी बढ़ती हुई ज़बानें दिखाई दी और सब लोग कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगी। मेरे तो कब इनके पेंतीकोस्त के रोज यानी 50वें दिन बाद उन पर रूह कुदस का नज़ूल हुआ और सब रूह कुदस से भर गए। और कलाम फरमाता है कि जब वो भर गए तो गैर ज़बानें बोलने लगी। और मुझे ये कोई ऐसी ज़बान नहीं थी जिसकी समझ नहीं आ रही। कलाम फरमाता है कि खुदा तरस यहूदी जो यरूशलेम में थे, हमें जिक्र मिलता है पार्टी, मादी, अरामी, मेसोपोटामिया और दीगर मुल्कों का। कलाम फरमाता जब रूह नाज़िल हुआ तो हर एक को उसकी ज़बान में उसकी प्यारी समझ आई। मेरे जो आज भी हम बेशुमार ज़ुबानें बोलते और किसी को समझ नहीं आती, लेकिन ईद पेंतीकोस्त के मौका पर ये खुदा की कुदरत थी कि सारे मुख्तलिफ मुल्कों से थे, लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी ही बोली बोल रही है। अगर आप गौर करें तो जब बाबल का बुर्ज बना रहे थे तो वहां पर खुदा ने ज़बानों के अंदर इत्तलाफ़ात डाल दिए ताकि वे एक दूसरे की बात को समझ न सके। लेकिन यहाँ पर खुदा की कुदरत ये है कि जब रूह कुदस का नज़ूल हुआ तो हर एक को अपनी अपनी ज़बान में समझ आना शुरू हो गई। और इसको याद रखे कि कलाम इलाही फरमाता है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरा ज़माना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अगर मैं जाऊंगा तो बाप से दरख्वास्त करूंगा कि दूसरा मददगार भेजिए, यानी कि रूह हक। और कलाम में इलाही फरमाता है कि जब रूह कुदस का नज़ूल हुआ, जब खुदा ने दूसरा मददगार 120 की जमात पर नाज़िल किया, बाकी लोगों पर नाज़िल किया, तो पहली बात तो सब रूह कुदस से भाग गए और दूसरी बात उनके अंदर दिलेरी आ गई, सूरत आ गई, और तीसरी बात कि वो कुव्वत लिबास से लबरेज हो गए। और कलाम इलाही फरमाता है कि जब वो पाक रूह से मामूर हो गए तो तब पतरस ने खड़े होकर पैगाम दिया। और वैसे वो योएल नबी की जो नबूवत है उसका जिक्र करता है। रसूलों के बाद उसके बाप की 17 में लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर डालूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, वो नबूवत करेंगे। वैसे यहाँ पर गौर करें तो वो पेशन गोई जो मुकद्दस योएल नबी ने की, वो नए अहदनामे के अंदर उसकी तकमील नजर आती है कि खुदा ने 120 की जमात पर अपने पाक को क्या किया, नाज़िल कर दिया। और वो पतरस जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया, जब पाक नाज़िल हुआ, जब उसे ताकत और कुव्वत मिली, जब वो पाक रूह से मामूर हो गया, तो दिलेरी के साथ खड़ा होकर उसने पैगाम दिया। क्या किया? पैगाम दिया। और लोग कहने लगे कि ये ताजा मह के नशे में। वहां पर उसने बयान किया, अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है
और कलाम में अल्लाह फरमाता जब उसने कलाम पेश किया तो लोगों के दिलों पर क्या लगी? चोट लगी। और एक ही दिन में 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया और यीशु के नाम पर क्या लिए? बपतिस्मे लिए। मेरे दोस्त इस बात को हमेशा याद रखें कि जब हम खुदा से मांगते हैं तो फिर वो हमें देता है। यीशु मसीह ने फरमाया मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज भी खुदा अपने मांगने वालों को अपना रूह कुद्दस अता फरमाता है। और फिर भी जो कलाम अल्लाह फरमाता है कि आखिरी दिनों से मुराद है ईद पेंतिकोस्त के जो अय्याम के बाद दिन चलेंगे, उनसे मुराद हमें नजर आती है कि आखिरी दिनों यानी खुदा यीशु मसीह की आमदे सानी पर होगा। लेकिन मेरे ज़ुकाब जब हम अपने आप को तैयार करेंगे, जब हम गुनाह से, बदी से, बुराई से, बुतप्रस्ती से बाहर आ जाएंगे तो फिर खुदा हमें चेंज कर देगा और पाक रूह का लिबास अता करेगा। क्योंकि मेरे जो याद रखे कि जब रूह कुद्दस नाज़िल होता है तो वो हमें दिलेरी की रूह देता है, फिर वो हमें कुव्वत और ताकत देता है ताकि हम दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की खुशखबरी फैला सके। फिर रूह कुद्दस हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। अगर अभी अतीत पर गौर करें तो खुदा का रूह आता और फिर वापिस चला जाता। लेकिन मेरे जो नया नामे के अंदर यीशु मसीह का जो रूह है वो हमेशा तक हमारे साथ है। अगर सब बादशाह की जिंदगी पर गौर करें तो कलाम में अल्लाह फरमाता है कि जब खुदा का रूह से जुदा हो गया तो एक बुरी रूह को सताने लगी। लेकिन जो नए नामे के अंदर पेंतिकोस्त के अंदर जो रूह कुद्दस का नज़ूल है वो हमेशा तक है और हमारे साथ रहेगा। क्योंकि कलाम फरमाता है मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा बल्कि दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ साथ रहेगा। तो आज अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें अपना पाक रूह दे तो हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें ताकि खुदा हमें भी ये नेमत अता करे ताकि हम नेमत से लबरेज ताकि कलाम की खुशखबरी फैला सके। मेरे इस ईमान के साथ हम सब अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।